Hello students, this is the 15th chapter Biodiversity, Conservation and Environmental Issues. In the previous part of the video, we were studying about solid waste management. So students, you have already studied about solid waste management in your previous classes, that is in the 9th standard. So what is solid waste? Solid waste is everything that goes to trash. It includes waste from offices, homes, stores, schools, hospital, etc. वेस्ट आर कलेक्टेड, सारा वेस्ट कलेक्ट होता है, फिर वो डिस्पोज्ड होता है बाय म्यूनसिपैलिटी. म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंसिस्ट ऑफ पेपर, फूड, plastic, glass, metal, rubber, leather, textile, etc. Burning reduces volume of the waste. Generally, it is not burned to completion. So open drums become breeding ground for rats and flies. Clear with this? Moving to the next slide. Sanitary landfills. Sanitary landfills क्या है? Sanitary landfills are substitute for open burning dumps. ऐसे dumps जो open हो. Here waste are dumped in depression or trench. ऐसे होल बनाते हैं जहाँ पे waste को dump करते हैं. Every day waste are added to this pit. Landfills get filled very soon, especially in metro cities. The amount of garbage generated is too high. In addition to this, there is a danger of chemicals percolating and reaching down to groundwater and contaminate these water sources. All waste can be characterized into 3 types. 3 types में waste characterized होते हैं. तो फर्स्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड इज़ रिसाइक्लेबल एंड द थर्ड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये 3 चीज़ को वेस्ट कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग 3 टाइप्स में. फिर आर रैग पिकर्स और कबाड़ी वालास. जो हमारे रैग पिकर्स होते हैं, जो कबाड़ी वालास होते हैं, दे डू अ वेरी ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग. जो प्राइमरी गोल है ऑफ ऑल सिटीजन शुड बी टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट. द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड. ये पिट्स जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे एकदम डीपली उसे पिट करते हैं इन द ग्राउंड में एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे डिस्पोज्ड ऑफ कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली. सो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन. एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है दे हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. Clear with this students? Moving to the next slide. Then Maharashtra government in the notification on 23rd June 2018 banned use of plastic to fight pollution caused due to extensive use of plastic. Ban on the use, sale, distribution and storage of plastic material. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाली थी ऑन द 23rd June 2018. यू हैव टू रिमेंबर द डेट स्टूडेंट्स, बिकॉज जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स. डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इन अ नोटिफिकेशन ऑन 23rd June 2018 what they have did, they have banned use of plastic. प्लास्टिक को बैन कर दिया गया टू फाइट पोल्यूशन, पोल्यूशन से फाइट करने के लिए. कॉज्ड ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ हो रहा था इसलिए. बैन ऑन द यूज़, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ प्लास्टिक. ना ही तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, ना ही तो हम उसका सेल कर सकते हैं, ना ही तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ही तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं. सारी चीज़ें बैन हो गई थी. मिशन प्लास्टिक फ्री महाराष्ट्र में
निकला था, मिशन निकला था, in which the mission was Mission Plastic Free Maharashtra. The Union Environment Ministry has amended rules in 2008-16 in order to strengthen the implementation of environmentally sound management of hazardous waste in the country. It also include ban on the use of thermocol. Thermocols का भी ban हो गया था. Large amount of use of plastic can be avoided if we inculcate the habit of carrying cloth bags when we go for shopping and strictly refusing plastic bags from the vendors. A government should charge high penalty or fine for the individuals not binding by these rules. तो ये सारी चीज़ें हुई थी जो स्टार्ट हुई थी 2016 से ही. फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल जनरेट हार्मफुल वेस्ट था that contain disinfectant, harmful chemicals and also pathogenic microorganisms, ये सारी चीज़ें भी इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में आती थी. मूविंग टू द नेक्स्ट, सच वेस्ट. ऐसे वेस्ट के साथ क्या करते थे? ऐसे वेस्ट को केयरफुल ट्रीटमेंट करते थे और उसको फिर डिस्पोज करते थे. हॉस्पिटल वेस्ट को स्टूडेंट्स. देन यू आर अवेयर ऑफ कलर कोड फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक प्रॉपर कलर कोड था कि ये कलर कोड से हम लोग पहचान लेते थे कि ये हॉस्पिटल का वेस्ट है. सो इट इज़ अ प्रॉपर कलर कोड फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. चाहे वो फिर कोई भी वेस्ट हो, इंजेक्शंस हो, कोई केमिकल्स हो, समथिंग सिरिंजेस हो, एनीथिंग, तो वो कलर कोड के अंदर के हिसाब से ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे. फिर इन रिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो इरिपेरेबल कंप्यूटर्स थे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स थे, इलेक्ट्रिकल वेस्ट थे, इसे ई वेस्ट बोलते थे. इसे क्या करते थे? इसे बरी करते थे इन द लैंडफिल्ड्स और आर कम्प्लीटली बर्न्ड. Major part of e-waste generated by developed countries are exported to developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इसे एक्सपोर्ट कर देते, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया. ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ दिस वेस्ट, metals like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered. Developed countries have facilities for recycling of e-waste. In developing countries, manual participation is involved, so workers are exposed to toxic substances from e-waste. Treatment of e-waste should be carried out in environment-friendly manner. Then you have already studied about radioactive pollution also. तो ये सारी चीज़ें we have studied. We should know what is e-waste, what are biomedical waste and what is the treatment, environment friendly manners क्या है, everything. And we have studied about radioactive pollutions also. So moving next towards the next slide. Now we will start with a very good topic, that is greenhouse effect and global warming. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर और अर्थ के सरफेस को हीट करने के लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. विदाउट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड हैव बीन 18 डिग्री सेल्सियस rather than average of 15 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस होता. रिमेंबर 18 डिग्री सेल्सियस, बट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस. ऑफ द सोलार रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ, clouds and gases reflect about 1/4 and absorb some of it. But half of total incoming radiations, जो total incoming radiations होते थे, but half of total incoming radiations reach the earth's surface and heat. Small portion of it is reflected back.
Earth's surface re-emits the heat in the form of infrared radiations. Part of this radiation do not escape into the space because atmospheric gases जो है हमारे CO2 और CH4 absorbs a major portion. सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को, अर्थ के सरफेस को और एटमॉस्फेयर को कूल करता है. तो जो -18 डिग्री सेल्सियस है वो एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस बन जाता है. ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ, क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 and absorb some of it, but half of total incoming radiation reaches the earth's surface and heat it. Right students, small portion क्या करता है, it is reflected back. अर्थ सरफेस वापस से उसको री एमिट करता है उस हीट को in the form of infrared radiation. Part of this radiation do not escape into the space because atmospheric gases है and absorbs a major portion. तो ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट. मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. द मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस, अभी हम लोग जो गैसेस के बारे में पढ़े तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी एंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस. उसका हीट को पहले तो वो लोग रेडिएट करते हैं, उसके बाद जो मेजर पार्ट है उसका इट कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस, thus reheating the earth. This cycle is repeated many times, hence CO2 and CH4 are commonly called greenhouse gases. जो हमारी CO2 और CH4 है उसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारी साइकिल है वो रिपीट होती है फॉर मैनी टाइम्स. Hence, CO2 and CH4 are commonly called greenhouse gases. The atmosphere around the earth, जो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फियर होता है, it acts as glass wall of a greenhouse. ये कैसे एक्ट करता है, एज अ ग्लास वॉल. इसके वॉल्स जो है वो ग्लास के बने होते, कांच के बने होते. इट एब्जॉर्ब सोलार रेडिएशन फ्रॉम द सन. सन से ये सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड देन रेडिएट इट टू द अर्थ. इट एब्जॉर्ब सोलार रेडिएशन फ्रॉम द सन और उसके बाद उसे रेडिएट करता है टू द अर्थ. एटमॉस्फियर प्रिवेंट इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ टू एस्केप इनटू द स्पेस. क्लियर विद दिस पॉइंट? देन gases responsible for this effect of carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, nitrous oxide and water vapors. गैसेस जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे इफ़ेक्ट के लिए, लाइक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, हमारा मीथेन है CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, nitrous oxide है N2O and water vapor. And now moving forward, because of burning of fossil fuels in the industries by automobile, burning of agricultural waste, level of CO2 are increasing. ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज़ हो रहा है इन इंडस्ट्रीज़ बाय ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, लेवल ऑफ CO2, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है. बायोगैस प्लांट है, पैडी फील्ड्स है, कैटल शेड्स है, दिस ऑल आर एड मीथेन टू द एटमॉस्फियर. देन chlorofluorocarbon are emitted by fire extinguisher and air conditioner. So clear with this point students? Moving to the next slide. Now here we completed our greenhouse effect and the global, we completed the greenhouse effect. Now we will complete the global warming. Global warming में क्या होता है? It is the increase in atmospheric concentration of greenhouse gases. Atmospheric concentration greenhouse gas का बढ़ जा रहा है.
and has resulted in the heating of the earth or rise in the temperature. इसके वजह से क्या हो रहा है, इट रिजल्ट इन द हीटिंग ऑफ अर्थ हीट हो रहा है ज़्यादा, और जो हमारा टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली राइज हो रहा है. एंड ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी, जो हमारी पिछली पास्ट सेंचुरीज़ है उसमें क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, एंड मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स. तो ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग. मूविंग नेक्स्ट. This rise in temperature leads to unfavorable changes in environment. टेम्परेचर राइज हुआ जिसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे अनफेवरेबल चेंजेस आए. ओके, एंड दिस चेंजेस रिजल्ट इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस. व्हाट दे रिजल्ट इन? ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस. फॉर एग्जांपल EI नीनो इफेक्ट. EI Nino effect results in the melting of polar ice caps. जो आइस होती है वो पूरे मेल्ट हो रहे हैं. एंड हिमालयन स्नो कैप्स which may be the cause for submerging of the coastal areas. I'll repeat this paragraph is important. This rise in temperature leads to unfavorable changes in environment and result in odd climatic changes. For example, EI Nino effect, and this EI Nino effect result in melting of polar caps and Himalayan snow caps, which may be the cause for submerging of the coastal areas. Moving next. Global warming can be controlled by reducing use of fossil fuels. हमें fossil fuels का जो यूज़ है उसे बहुत हद तक कम करना होगा, तब जाके हमारा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आएगा. इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज. जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं उसको बहुत एफिशिएंटली, बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, तब जाके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट को कट करना नहीं चाहिए, डिफॉरेस्टेशन एकदम कम कर देना चाहिए. बिकॉज प्लांट क्या करते हैं, प्लांट हमारे एयर को भी साफ करते हैं. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, देन प्लांटिंग ट्रीज एंड चेकिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. So what we can do, global warming can be controlled by reducing fossil fuels, improving efficiency of energy usage, reducing deforestation, planting trees, and checking of human population growth. Clear with this, students? Moving next. Next we will start with the ozone depletion. Ozone depletion में क्या होता है? ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर है. ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? ओजोन जो है इज़ फोटो डिसोशिएटेड एंड इज़ जनरेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ UV रेडिएशंस. ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फियर. Ozone is photodissociated and is generated by absorption of short wavelength. कैसे जनरेट हुआ वो? एब्जॉर्प्शन हुआ शॉर्ट वेवलेंथ का UV रेडिएशन का. सो O3, ओजोन इज़ द O3, O2 प्लस O मिलेगा तो हमारा ओजोन बनेगा, या फिर O2 प्लस O में UV रेज आ रही है तो हमारा O3 बन रहा है. तो इस तरीके से ओजोन से O3 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और O2 प्लस O से UV रेज मिलती है, उसके बाद हमारा O3 बन जाता है. जनरेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ओजोन आर इन इक्विलिब्रियम. जो हम लोग जनरेशन कर रहे हैं और डिसोसिएशन कर रहे हैं ओजोन का, ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में हैं.
leading to steady concentration of ozone in the stratosphere 12 to 15 kilometers from the earth's surface in the atmosphere. Clear with the students? Generation of dissociation of ozone are in equilibrium, which leads to steady concentration of ozone in the stratosphere. Stratosphere कहाँ है? 12 to 15 kilometers from earth's surface in the atmosphere. Moving next to the last paragraph. This ozone layer acts as shield that absorb UV radiation from the sun, and it protect all types of life on earth. ये ओजोन लेयर क्या करता है? एक शील्ड के हिसाब से काम कर रहा है. अब ये शील्ड क्या कर रही है? ये एब्जॉर्ब कर रही है यूवी रेडिएशन को फ्रॉम द सन से जो यूवी रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रही है एंड वो प्रोटेक्ट कर रही है ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, ये यूवी रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय ओजोन ब्लैंकेट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स थिकनेस. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी थिकनेस से. एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय ओजोन ब्लैंकेट is proportional to its thickness. Thickness is more above the poles than at the equator. Thickness ज़्यादा है, more above the poles than at the equator. UV rays are highly injurious to living organism. Living organisms के लिए ये UV rays बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा इंजीरियस होती है. Since DNA and protein of living organism absorb UV rays, जो हमारा DNA है और प्रोटीन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो UV रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही इजीली, एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड विद इन दिस मॉलिक्यूल. और उसके अंदर जो हाई मॉलिक्यूल्स है, जो उसके अंदर हाई एनर्जी है, वो क्या करता है? वो ब्रेक करता है केमिकल बॉन्ड को विद इन दिस मॉलिक्यूल. तो व्हाट वी हैव स्टडीड कि ये ओजोन लेयर एक्ट करता है एज शील्ड दैट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय ओजोन ब्लैंकेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स थिकनेस. Thickness is more above the poles than at the equator. Very important, students. And UV rays are highly injurious to living organism. Since DNA and protein of living organism absorb UV rays and its high energy breaks the chemical bond within this molecule. So students, we will end this video here. In the next part of the video we will complete this topic. So thank you.